Assalamu alaikum, dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel, Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. Today, my topic is the complex formation of D block elements. And we have already studied so many properties of D block elements. And one more property in our syllabus that we have to discuss here is their complex formation. So, first of all, these D block elements are transition elements have the property to form large number of coordination compounds, or we also say them as complex compounds. First of all, they form large number of complex compounds. They form large number of complex compounds, or इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोलते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. इनकी जो एग्जाम्पल्स है, फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं एग्जाम्पल्स बता दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड FeCN6 trinegative, FeCN6 4 negative, ZnNH3 4 times, dipositive, NiCN4 dinegative, and PtCl4 dinegative, etc. One more example, CONH3 6 times, tripositive. These are the coordination compounds, or these are the complex compounds which are formed by our D block elements. Iron, here is the D block element. Iron D block element. It is zinc, nickel, cobalt, platinum. These are the D block elements here. Why they form D block elements? What are these coordination compounds? These coordination compounds are the compounds which are formed by D block elements with those which have those atoms or molecules which are either negatively charged. For example, Cn here is the negatively charged, and those molecules which has an unshared pair of electrons. Ammonia in here, इसके पास unshared pair of electrons होता है. यहाँ पे भी अमोनिया है, इसके पास भी unshared pair of electrons होता है. तो in short, we define complex compounds or coordination compounds. These are the compounds in which the central metal atom is bonded to either negatively charged ions or neutral molecules, but neutral molecules having unshared pair of electrons. And these negatively charged atoms are ions, and the neutral molecules having unshared pair of electrons are called ligands. तो ligands होते कौन से हैं? These are negatively charged ions, or these are neutral molecules with unshared pair of electrons. ठीक है. नेगेटिवली चार्जड आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे एक्ट एज लिगेंड्स. और यहां पे जो लिगेंड्स होते हैं, ये हमारे जो भी मेटल एटम्स है, ठीक है, जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर्स देते हैं. इधर ये नेगेटिवली चार्जड हो, इसके पास भी एक नॉन
बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो हैविंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दोनों एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकते हैं, तो ये सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं विच इज डी ब्लॉक एलिमेंट हियर एंड फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. दिस इज मेटल एंड दिस इज लिगेंड एंड लिगेंड हैज गिवन और शेयर्ड both the electron pairs to form a bond with metal atom, which is here d block elements are the transition. These central metal atoms are from our transition elements. ठीक है. And this bond जिसमें जो ligands होता है they share both the shared pair of electrons, इनको हम coordination bond बोलते हैं, इनको हम coordinate bond बोलते हैं. कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है? दिस इज द बॉन्ड इन विच बोथ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय ओनली वन बॉन्डेड एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एंड हियर उनको हम बोलते हैं लिगेंड्स. दे कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड और दीज कैन बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब ये सवाल उठता है कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते क्यों है? ठीक है, तो आप हम यहां पे लिखेंगे रीजन. रीजन क्या है? ठीक है, रीजन क्या है वाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस? सबसे पहला वाला रीजन बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज. बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज उनका साइज बहुत छोटा होता है. दैट्स वाई दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इनके पास हायर आयनिक चार्ज होता है. हायर आयनिक चार्ज होता है. दे हैव हायर चार्ज. इनके पास साइज जो होता है ये कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा स्मॉल होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, और इनके पास जो चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है. इसलिए इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से इनका बहुत लार्ज इनका चार्ज बाय साइज रेशियो होता है. चार्ज बाय साइज जो होता है वो इनका बहुत ज्यादा लार्ज होता है. ठीक है, और एक प्रॉपर्टी इनकी, क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स. इनके पास अवेलेबल वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं. वैकेंट डी ऑर्बिटल्स. अब ये वैकेंट डी ऑर्बिटल्स किस काम आते हैं कि जब भी लिगेंड इज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेदर दिस लिगेंड इज ए नेगेटिवली चार्ज्ड आयन या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जब भी ये मेटल एटम को देता है विच कॉल्ड ए सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है, तो इस सेंट्रल मेटल एटम के पास वो जगह होनी चाहिए इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट दैट अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसीलिए और ये क्वालिटी जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास होती है. they have available vacant d orbitals to accept the electron pair which is donated by the ligands in order to form the coordinate bond. ठीक है.